from 2016 onwards. In addition to training, its invaluable contribution during major conflicts of 1965 and 1971 have been important milestones. During 1965 Indo-Pak War, a large number of flying instructors and technical personnel were dispatched to operational units, which they served with great distinction along with young fighter pilots who have been trained at this station. As you are aware, Squadron Davaya of this station was conferred with the prestigious Mahavir Chakra posthumously in 1988 for displaying great valor during the 1965 war, in which, in flying a vintage Mystère aircraft, he shot down a starfighter. Something similar has happened in the past few days. During 1971 war, an operational squadron of Vampire aircraft was raised using own resources in record time and was operated as a forward base in western sector and undertook numerous interdiction missions and provided close air support to our ground forces. Vampire was in record time was modified for night operations, and it goes to the credit of those daring pilots who carried out numerous counter-surface war operations by night. They left their footprints at Kanganpur, Kulmokai, Patoki, Changamanga, Firozpur, Fazilka, to name a few. In both the wars, several personnel from the station were decorated with gallantry awards. The helicopter training school at the station has been actively involved in undertaking numerous disaster relief operations and rendering aid to civil authorities in various parts of the country. Breathtaking missions flying in marginal weather and extricating medical casualties while hovering above rooftops, including the recent floods that happened, unfortunately, in the state of Kerala. The 5 base repair depot was formed on 1st April 1966 to overhaul the NATs, the famous saber slayers of yesteryears. Thereafter, the Indian Air Force trainer Kiran was overhauled here. At that particular time, I have also paid visits to drop aircraft for overhaul to the 5 BRD in Sulur. Now it is overhauling the legacy Avros and Dorniers at this depot. They have taken numerous innovative measures to promote self-reliance, which has been hailed at the national level. The depot has achieved dual certification to Quality Management System ISO 9001-2015 and Environmental Management System ISO 14001-2015, as well as Design House approval in their committed pursuit of excellence. 5 BRD has shown as a center of excellence in the field of testers. Over the years, 5 BRD has grown by leaps and bounds to be a formidable depot with multi-spectrum capability, maintaining a very high degree of operational preparedness at all times. We also, for this color presentation, have got veterans from both Air Force Station Hakimpet and 5 BRD. As it is, this is a place that we use for training. It's got a wonderful training environment. It is close to HAL Bangalore Division for technical support. But the squadrons will fight in the western or the northern borders, wherever they are deployed. Sir, China's threat across the Indian Ocean. Hello. We'll take from Dulus. No, that is I don't know what is the end user agreement between America and Pakistan. If the end user agreement was that they will not use it for offensive purposes, then I think they have violated that end user agreement. Because we have got pieces of the AMRAAM missile in our territory, which we displayed, and obviously I think they have lost an F-16 aircraft in that combat. So obviously they have been using the aircraft against us. The last question from Rajasthan Patrika. Sir, Jeevan Jha from Rajasthan Patrika. Last question. Sir, February is the saddest month for IAF. Lost 6 aircraft and 9 pilots. Is there any requirement for upgradation of 6 aircraft? 6 aircraft and 9 pilots in February month lost. So is required any upgradation of training and anything else? No, we lost one Mirage 2000, which was on the inventory of HAL. It was not our aircraft at that particular time. Then we lost one helicopter, which was in the ongoing operation that is going on, for which a court inquiry has sat. And then there was this loss of a mid-air that took place during this thing.
So basically it is two accidents that we have had, which concerns us, which is the helicopter for which the court inquiry goes, and the mid-air, which happened in the practice for display for Aero India. So we have to get our act right and find out what caused the mid-air and get the procedures correct before we start doing aerobatic flying with the Surya Kiran. And same goes for the helicopter which was lost during this thing. We not lost 9 aircraft by any chance. 9, I think we were lost in the whole year. So how do you look at the release of Abhinandan? Whether it's pressure or I can't comment on the politics of it. Okay. We are happy that Thank he's you. back with us. Sir, wait a minute. No, medical examination and debriefing after that depends on his fitness. If he is fit to fly a fighter, then he'll go back to a squadron. If he is not fit to fly a fighter, then he'll become a low medical category till the time he gets his currency, and then he'll go back when he gets his fighter currency back. My question is, if he is quick, will he be placed in the same squadron? No, that depends when he does his medical recovery. Okay, if he's immediately fit, he'll go back to the same unit. We don't change units just because of that. It depends on basically it is through the doctors, because you must remember that ejection is something which is very. I've also ejected. It is something that takes a lot of toll on your body, and if you are not perfectly fit, and God forbid you have to eject again, you will be spending the rest of your life on a wheelchair. So we don't take a chance with the fitness of a fighter pilot. That's why the medical rejection in entry when we select people is very, very high, because your physical condition, your curvature of your spine and all those things have to be very, very good to take that kind of a rejection injury. Sir, permanent commission for women officers, what is the present? Permanent commission, the government has agreed, has this thing, it is subject to vacancies and merit. In Air Force, it is there in all branches. We have no restriction. When she finishes her 14 years service, after that, before that, the selection will be made. Selection is made after 13 years onwards. Since he is ex-AOP, so he knows better than me. So, Thank you. 13 years onward, the selection is made depending on the number of vacancies and merit. If they are interested, they will be permitted to. No. Yeah, they will. If they opt for it, they will be permitted to come to the permanent commission. That is depending two things. First of all, the merit, and vacancies, and most importantly, they have to opt for it because they have joined the Air Force Short Service Commission. Thank you so much, sir. Thank you so much. We are running out of time. No. Listen. Excuse me. No. Excuse me. No. We are running out of time. It is an ongoing operation. I will not comment on it. Thank you so much, gentlemen. Thanks for the cooperation. We are winding up. Thank you. तो एयर चीफ मार्शल बीएस धनोआ को आप सुन रहे थे प्रेस कॉन्फ्रेंस वायुसेना की तरफ से। हमारा काम आतंकवादियों के शवों की गिनती करना नहीं, बड़ा जवाब दिया गया सेना की तरफ से। जो लोग पूछ रहे हैं कितने आतंकी मरे कि नहीं मरे, उस पर बीएस धनोआ की तरफ से कहा गया एयर चीफ मार्शल की सेना का काम आतंकवादियों के शवों की गिनती करना नहीं है। सेना का काम सिर्फ आतंकी ठिकानों को तबाह करना। F-16 पर पाकिस्तान और अमेरिका की डील को लेकर कोई जानकारी नहीं। हमारा काम आतंकवादियों के शवों की गिनती करना नहीं। उनकी तरफ से यह भी कहा गया कि अगर नुकसान नहीं हुआ उस तरफ तो फिर जवाबी कार्रवाई क्यों की पाकिस्तान ने। जो लोग सवाल उठा रहे हैं, जो लगातार सबूत मांग रहे हैं कि किस तरह की कार्रवाई हुई, कितने आतंकी मरे, अंतर्राष्ट्रीय मीडिया के हवाले से तमाम जो विपक्ष सवाल पूछ रहा है, चाहे वो दिग्विजय सिंह हो, चाहे कपिल सिब्बल हो, चाहे नवजोत सिंह सिद्धू हो, उनको जवाब दिया है बीएस धनोआ ने, वायुसेना प्रमुख, कि हमारा काम आतंकवादियों के शवों की गिनती करना नहीं। सुनिए आप। MiG-21 Bison is capable. It has been upgraded. It is not the old MiG-21 BIS. It's got a better weapon system. It's got better radars, better air-to-air missiles, a radar warning receiver, shaft flares, whatever it takes to make it, from third generation to 3.5 generation or so.
So it is an upgraded aircraft, and we fight with all the aircraft in our inventory. तो दरअसल ये सवाल पूछा गया था कि मिग 21 का इस्तेमाल क्यों किया गया F-16 के अगेंस्ट। उसका जवाब दिया कि एक बेहतर अपग्रेडेड वर्जन था मिग 21, जिसके जरिए मिग 21 के जरिए जिस तरह से F-16 को मार गिराया गया, वो सवाल BS धनोआ से पूछा गया कि F-16 के खिलाफ मिग 21 क्यों यूज किया गया, क्यों इस्तेमाल किया गया। उसका जवाब दिया BS धनोआ ने कि वो एक अपग्रेडेड वर्जन था, बेहतर अपग्रेडेड था। 3 और 3.5 उन्होंने टेक्निकल भाषा में फर्क समझाया कि किस तरह से वो बेहतर था, अपग्रेडेड था। सोच समझकर मिग 21 का इस्तेमाल किया गया। Target has been clearly amplified by the Foreign Secretary in his statement. Yeah. And of course, if he planned to hit the target, we hit the target. Otherwise, why would he have responded? ANI, please. If he had dropped bombs in the jungle, there's no need for him to respond. तो ये जवाब बड़ा महत्वपूर्ण है कि अगर जंगल में बम गिराए खुले इलाके में, तो फिर पाकिस्तान ने रिस्पॉन्ड क्यों किया। हमारा जो टारगेट था, जो हमने स्पेसिफाई किया था, उस टारगेट पर हमने बॉम्बिंग की, हमने बम गिराए। हमारा टारगेट जो था उसी पर एग्जैक्टली हमने बॉम्ब गिराए। हमारा ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा। हमारा काम आतंकवादियों की लाशें गिनना नहीं है। हमने जो टारगेट फिक्स किया था उस टारगेट को हमने उड़ा दिया, बम गिराए वहां पर। और अगर उनको नुकसान नहीं हुआ होता, अगर जंगल में, खुले जंगल में बम गिराए होते, तो पाकिस्तान रिस्पॉन्ड क्यों करता। इसका मतलब कि पाकिस्तान को जबरदस्त नुकसान पहुंचा, आतंकवादी मरे वहां पर, और इसी वजह से पाकिस्तान ने रिस्पॉन्ड किया। ये उन्होंने BS धनोआ ने पूछा कि अगर खुले जंगलों में बम इस तरह से गिराए होते तो फिर पाकिस्तान रिस्पॉन्ड क्यों करता। That statement will be made by the government. No, I mean, we are not, I am not, Air Force is not in a position to clarify that how many people were inside it. That we don't count human casualties. We count what targets have we hit or not hit. Time's up in there, please. The bomb damage assessment that is done post a mission calculates the number of the target you've been hit or you've not been able to hit. We can't count how many people have died. That depends on how many people were there. तो यह हमारा काम नहीं है कि कितने लोग मरे, हम आतंकवादियों की लाशें गिनना हमारा काम नहीं है। हमारा जो काम था, हमने टारगेट को स्पेसिफाई किया, हमारे पास इंटेल था, हमारे पास इस तरह के इनपुट्स थे कि वहां पर आतंकवादियों की ट्रेनिंग कैंप्स हैं, वहां पर उनको ट्रेनिंग दी जा रही है बड़ी संख्या में, इसलिए उस टारगेट को तबाह किया गया। और हमारा काम उनकी गिनती करना नहीं है, लेकिन हमको जो जानकारी थी, हमने जो टारगेट स्पेसिफाई किए थे, हमने उसको ही हिट किया, और उसमें ये ऑपरेशन पूरी तरह से सक्सेसफुल रहा। इसका मतलब जहां हिट करना था, जो टारगेट था, उसको हिट किया गया। और पाकिस्तान ने समझौते का उल्लंघन किया। दरअसल F-16 को लेकर उनसे सवाल पूछा गया कि पाकिस्तान और अमेरिका के बीच, या अमेरिका ने इस शर्त के साथ F-16 83 में जो समझौता हुआ था वो पाकिस्तान को दिए थे कि वो काउंटर टेररिज्म में किसी देश के खिलाफ इसका इस्तेमाल नहीं करेगा। तो इसका क्या उल्लंघन किया। हालांकि उन्होंने कहा कि इस डील के बारे में मुझे जानकारी नहीं, लेकिन पाकिस्तान ने समझौते का उल्लंघन किया है। हमारा काम आतंकवादियों के शवों की गिनती करना नहीं, लेकिन सबसे जरूरी बात यह कही कि अगर वाकई नुकसान नहीं हुआ, अगर कोई आतंकी नहीं मरे, अगर खुले जंगलों में बम फेंक कर आ गई सेना, तो फिर पाकिस्तान ने रिस्पॉन्ड क्यों किया। पाकिस्तान ने रिस्पॉन्ड किया क्योंकि नुकसान पहुंचा, जबरदस्त नुकसान पहुंचा। जो टारगेट था, हमने जो लक्ष्य तय किया था, वो लक्ष्य पूरा हुआ। इसी वजह से ऑपरेशन को भी सक्सेसफुल कहा गया। एयर स्ट्राइक में कितने आतंकी मरे, ये सरकार बताएगी। ये काम सेना का नहीं है कि हमने कितने आतंकवादी वहां पर मारे, उनकी लाशें गिनने का काम हमारा नहीं है। हमारे पास इस तरह की रिपोर्ट्स थी, वहां पर टेरर कैंप्स थे, ट्रेनिंग कैंप्स थे बालाकोट में, और इस वजह से उस इलाके को, उस ट्रेनिंग कैंप्स को टारगेट किया गया। इस तरह की रिपोर्ट्स थी, वहां पर बड़ी संख्या में आतंकवादी, उनकी ट्रेनिंग कैंप्स, उनके ट्रेनर, सब लोग वहां पर मौजूद थे, इस वजह से टारगेट किया गया। अगर वहां लोग ही नहीं थे तो हम टारगेट क्यों करते, बॉम्बिंग क्यों करते, सेना क्यों ये कार्रवाई करती, क्रॉस क्यों करती सेना, वायुसेना। हालांकि आपको बता दें, आज सुबह से ही तमाम नेताओं की तरफ से सबूत मांगे जा रहे थे सेना से। बार बार ये कहा जा रहा था कि कितने आतंकी मारे, सेना बताए। नवजोत सिंह सिद्धू भी कह रहे थे कि 300 मरे, ये कैसे आप कह रहे हैं। सबूत मांगने वाले आ गए थे, चाहे नवजोत सिंह सिद्धू हो, चाहे कपिल सिब्बल हो, चाहे दिग्विजय सिंह हो।
कांग्रेस पार्टी के तीनों नेता आज सबूत मांग रहे थे सेना से एक बार फिर कि कहां, कैसे, कितने मरे, बताइए तो सही। सेना पर शक किया जा रहा था, डाउट किया जा रहा था सेना की कैपेबिलिटी पर, और इसी वजह से बीएस धनोआ आज सामने आए। एयर चीफ मार्शल, पहले F-16 विमान का टुकड़ा दिखाकर इनका मुंह बंद किया गया। इससे पहले F-16 विमान गिराया था MiG-21 ने, वो उस पर भी भरोसा नहीं हो रहा था यहां पर कुछ लोगों को कि MiG-21 ने, अभिनंदन ने F-16 को मार गिराया, पाकिस्तान का एक फाइटर जेट हमारी सेना ने मार गिराया, इस पर भी भरोसा नहीं हो रहा था यहां पर कुछ लोगों को। फिर सेना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, सेना सामने आई, F-16 का टुकड़ा दिखाया, तब जाकर इनका मुंह बंद हुआ। और अब एक बार फिर से इनका मुंह बंद करने के लिए सेना को सामने आना पड़ा। और एयर चीफ मार्शल जो है बीएस धनोआ, उन्होंने कहा है कि हमारा काम आतंकवादियों के शवों की गिनती करना नहीं है। कृष्ण मोहन मिश्रा इस वक्त न्यूज रूम से मेरे साथ जुड़ चुके हैं। कृष्ण मोहन, मेरे ख्याल से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करी एयर चीफ मार्शल ने, ये सारे सवाल जो सुबह से कपिल सिब्बल, नवजोत सिंह सिद्धू, मणिशंकर अय्यर ये लोग उठा रहे थे, इन सबके जवाब मिल गए। सेना का काम आतंकवादियों के शवों की गिनती करना थोड़ी ना है। बिल्कुल सही कहा, और खासतौर पर किसी एयर स्ट्राइक के बाद ये बताना कि कितने लोग मारे गए हैं, ये बताना बहुत मुश्किल होता है। क्योंकि पायलट, अगर आप किसी हवाई हमले के बारे में जानकारी किसी से लें तो वो आपको बताएगा कि बहुत ऊंचाई से, और अगर कोई मिसाइल फायर की जाती है और उसके बाद एक धमाका होता है, आग और धुएं का गुबार होता है, उसमें ये कभी नहीं बताया जा सकता कि कितने लोग मरे। आपके पास सिर्फ एक इमेज तस्वीर, या हो सकता है अगर उसके ऊपर से फ्लाई करिए तो सिंथेटिक अपर्चर रडार से कोई तस्वीर मिले, लेकिन वो तस्वीर भी ऐसी नहीं होती जैसे हम और आप कैमरों से तस्वीरें खींचते हैं जिसमें नजर आए कि इतने लोग मारे गए। वो सिर्फ इमेजेस होती हैं, सैटेलाइट इमेजेस और कंप्यूटर इमेजेस। तो ये बताना असंभव है कि कितने आतंकवादी मारे गए। ये जानकारी बाद में इंटेलिजेंस के सोर्सेज इकट्ठी करते हैं, और वो भी उस पार के जो मोबाइल इंटरसेप्ट्स हैं या ट्रांसमीटर इंटरसेप्ट्स हैं या मेल्स हैं या दूसरे मैसेजेस हैं, उनसे जानकारियाँ टुकड़ों में इकट्ठी की जाती हैं, फिर उनको कोरोबरेट किया जाता है, यानी एकत्रित किया जाता है, और उससे एक अंदाज़ा बनता है कि इतने आतंकवादी मारे गए। ये किसी भी सेना के लिए, खास सेना तो शायद बता भी सकती है, पर वायुसेना के लिए बताना लगभग नामुमकिन होता है कि उसके हमले से इम्पैक्ट में कितने लोग मारे गए। तो और एयर चीफ ने बिल्कुल साफ साफ यही बात कही कि हम ये नहीं बता सकते हैं कि कितने लोग मारे गए, लेकिन जो टारगेट दिया गया था वो टारगेट हिट करना काम था। एक और इम्पोर्टेंट चीज उन्होंने कहा, जब MiG-21 का इस्तेमाल क्यों किया गया, उन्होंने कहा कि वन इज ए प्लान्ड ऑपरेशन इन विच यू कैन प्लान एंड कैरी आउट, बट व्हेन एन एडवर्सरी डज अ स्ट्राइक ऑन यू, मतलब सरप्राइज एलिमेंट अचानक से, तो फिर एवरी अवेलेबल एयरक्राफ्ट गोज ऑन इररिस्पेक्टिव ऑफ विच एयरक्राफ्ट इट इज। ये भी जवाब दे दिया। मतलब देखिए अमन, इसको समझने की ज़रूरत है कि आखिरकार कोई एयर इनकर्जन जब होता है तो पहली प्रतिक्रिया क्या होती है। एयर इनकर्जन की खबर रडार पिक करते हैं, रिएक्शन टाइम बहुत कम होता है, क्योंकि कोई भी फाइटर जेट की रफ्तार सुपरसोनिक होती है, यानी वो 1.5 मैक 2 मैक यानी 1,500-2,000 किलोमीटर की रफ्तार से आपकी तरफ आ रहा होता है। इसकी तैयारी पहले से होती है। ऑपरेशनल रेडीनेस प्लेटफॉर्म्स, ORP कहते हैं, वो सारे फॉरवर्ड बेसिस पर एक्टिव होते हैं। ORP के अंदर क्या होता है कि 2 या 3 जितनी भी रिक्वायरमेंट है उतने फाइटर एयरक्राफ्ट पूरी तौर पर तैयार, पूरी तौर पर आर्म्ड रखे जाते हैं, और उनके ठीक जिस हैंगर में वो रखे जाते हैं, ब्लास्ट पेन कहते हैं उनको, एक इस किस्म की अर्धगोलाकार संरचना होती है जिसको कैमोफ्लेज करके छुपाया हुआ होता है, और उसके ठीक नीचे एक अंडरग्राउंड बंकर होता है जिसमें एक पायलट दिन में 24 घंटे 8-8 घंटे बाद पायलट बदलते हैं, पूरी तौर पर तैयार वहाँ पर तैयार रहता है। और उसको खबर देने के लिए एक नहीं 3 जरिए होते हैं। उसके कमरे में एक स्पीकर होता है, उसके पास एक फ़ोन होता है जिसका क्रेडल टेप से बंधा हुआ होता है जिससे कहीं गलती से वो क्रेडल से बाहर ना आ जाए, और उसके पास एक वॉकी टॉकी होती है, और जैसे ही खबर आती है स्क्रैम्बल स्क्रैम्बल स्क्रैम्बल, वैसे ही वो वहाँ से दौड़ना शुरू करता है। दूसरी तरफ ग्राउंड स्टाफ जहाज़ को खींचकर ब्लास्ट पेन से बाहर लाता है, जो ATC है या ट्रैफिक कंट्रोलर, वो उस जहाज़ के लिए पाथ क्लियर करता है, और 1 से 1.5 मिनट के अंदर वो जहाज़ ऊपर होता है। ऐसे में आपके पास चॉइस नहीं होती है कि आप MiG-29 निकालेंगे या Su-30 निकालेंगे या Mirage 2000 निकालेंगे। अगर पास में सबसे पास के बेस में MiG-21 है, जो कि हम जानते हैं कि था, तो इंटरसेप्ट करने के लिए MiG-21 ही जाएगा। और MiG-21 50 साल बाद भी आज की तारीख में भी दुनिया का सबसे अच्छे इंटरसेप्टर गिना जाता है। अपग्रेडेड था, और MiG-21 आज की तारीख में भी दुनिया के सबसे अच्छे इंटरसेप्टर्स में गिना जाता है, उसमें कोई दो राय नहीं है। और इसका नतीजा सामने आया। अभी पाकिस्तान ने इस चीज़ को स्वीकार नहीं किया है, लेकिन F-16 को गिराने वाला
MiG-21 दुनिया का पहला एयरक्राफ्ट होगा जिस डॉग फाइट में एक MiG-21 ने एक F-16 को गिराया। ये पहली घटना होगी। मैं कृष्ण मोहन आपके पास आऊंगा। मेरे साथ राज कादियान डिफेंस एक्सपर्ट हैं, वो मेरे साथ जुड़ चुके हैं। राज कादियान जी, सेना ने क्लियर कर दिया, वायुसेना ने, सेना का काम आतंकवादियों की लाशें गिनना थोड़ी ना है। जो लोग सबूत मांग रहे थे कि कितने मारे, कहां मारे। देखिए, ये जो लोग सवाल उठा रहे हैं कि प्रूफ बताओ कितने मारे हैं, तो क्या ये समझते हैं कि पायलट वहां नीचे उतर के बॉडी गिनेगा? कल मासूद अजहर के छोटे भाई ने या परसों पेशावर में पब्लिक रैली में कहा है कि इन्होंने हमारे खेमे पर अटैक किया है। ये सवाल तो हम ही उठा रहे, पाकिस्तान मानता है इसको। उसका छोटा भाई अमन अजहर, उसने पेशावर में पब्लिक रैली में कहा है कि हमारे, उसने बताया भी कि कितने आदमी मर गए, 300 तो शायद नहीं होंगे, वो किसी को नहीं पता भी, तो पर उसने माना है। उसने ये भी कहा है कि हम भारत के खिलाफ अभी जिहाद की लड़ाई शुरू करेंगे। तो किसी को शक नहीं है, वो पाकिस्तान भी अगर कुछ होता ही नहीं तो पाकिस्तान को क्या पागलपन थोड़ी था, वो 3 हवाई जहाज भेजता। उनको दुख है। खैर, उससे तो सबूत ये भी है कि वो जो जैसे मोहम्मद है वो पाकिस्तान आर्मी का हिस्सा है, जब भी तो वो रिएक्ट कर रहे हैं। लेकिन ये कहना है कि कुछ नहीं हुआ, हम तो कुछ पेड़ पे गिरा है या किसी खुले, ये सब बेकार की बातें हैं। अटैक हुआ है। आजकल तो टेक्नोलॉजी इतनी एक्यूरेट है जी, आपकी लोकेशन एक्यूरेट थी, लेजर गाइडेड वो बॉम्ब है, कहीं जब आपने बटन दबा दिया वो कहीं और जा ही नहीं सकता सिवाय जो टारगेट आपकी इंटेंडेड थी उसके ऊपर जाएगा। तो मेरा मानना है कि स्ट्राइक बिल्कुल सही थी। ये कितना नुकसान हुआ है एग्जैक्ट वो तो हम नहीं बता सकते, हो तो पाकिस्तान भी नहीं बताएगा आपको। लेकिन जब वो मासूद का भाई खुद मान रहा है तो शक क्यों कर रहे हैं हम अपने आप को? ये तो हमारी पॉलिटिक्स जो, मेरे ख्याल से इसका जवाब राज कादियान जी आज दे दिया एयर चीफ मार्शल ने, कि अगर नुकसान नहीं होता तो पाकिस्तान क्यों बौखलाता, क्यों जवाब देता, क्यों जवाबी कार्रवाई करता, क्यों रिस्पॉन्ड करता। यानी कि चोट पहुंची तभी तो रिस्पॉन्ड किया, तभी तो जवाबी कार्रवाई हुई। बहुत बहुत शुक्रिया राज कादियान जी हमसे बात करने के लिए। तो हमारा काम आतंकवादियों के शवों की गिनती करना नहीं, BS धनोआ की तरफ से, एयर चीफ मार्शल की तरफ से कहा गया है।